بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کے بعد ایک مسلسل ہوتی اموات نے پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ مرنے والوں کی حالت دیکھ کر موت سے پہلے کی سختی اور تکلیف محسوس کر کے سب ہی کا کلیجہ کٹ کر منہ کو آنے لگا تھا۔ ہر کسی کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اگلی باری اسی کی نہ ہو، کیونکہ اب یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کا مقابلہ تو ناممکن ہے۔ یقیناً وہ کوئی بڑی بھاری طاقت رکھتا ہے۔ بس سٹاپ سے آگے 10 منٹ کا راستہ تھا۔ اونچی نیچی پگڈنڈی کے ساتھ ایک کنواں تھا جو گاؤں کے شروع میں آتا تھا۔ اس کے بعد گاؤں کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ اسے پیدل ہی گاؤں تک جانا تھا، کیونکہ بس سٹاپ کے بعد کوئی بھی سواری نہیں ملتی تھی۔ تیز تپتی دھوپ میں چلنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ پسینے سے اس کا برا حال تھا، پیاس سے اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ وہ کنویں سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر قریب ہی رکھے ایک گھڑے پر پڑی۔ اس نے دل میں سوچا کہ گھڑے میں پانی ٹھنڈا ہوگا، کیوں نہ یہاں سے پانی پی لوں۔ یہ گھڑا وہاں پر مسافروں کے پینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ گھڑے میں سے پانی واقعی ٹھنڈا تھا۔ اس نے جی بھر کر پانی پیا۔ وہ پانی پی کر بھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہا۔ دوشیزہ نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچا تھا تب اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ گئی؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اچانک اس لڑکی کی آواز سرمد کے کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز بھی اس لڑکی کی طرح خوبصورت ہی تھی۔ سرمد اس کی مدد کرنے کے لیے دل و جان سے حاضر ہو گیا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دراصل میری امی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ میرے لیے انہیں اکیلے بس سٹاپ پر لے جانا مشکل ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چل کر میری مشکل آسان کر سکتے ہیں؟ اس دوشیزہ نے نہایت دکھی انداز میں کہا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ سرمد نے اس سے پوچھا۔ لڑکی نے جنگل کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، اس جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، ہم تھوڑا وقت پہلے اس جگہ پر آئے ہیں۔ دراصل میرے بابا ایک ضروری کام سے شہر گئے ہوئے ہیں، اگر وہ گھر میں ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ سرمد اس لڑکی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی پائل کی چھن چھن بار بار سرمد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سرمد کا دل گھبرانے لگا۔ اسے کوئی انہونی ہونے کا احساس ہونے لگا، کیونکہ وہ دونوں چلتے چلتے جنگل میں کافی دور آ گئے تھے، لیکن ابھی تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان ظاہر نہ ہوا تھا۔ سرمد کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی سرمد کو فوراً پتہ چل جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اب وہ کافی آگے آ چکا تھا۔ آپ کا گھر کتنی دور ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ بس تھوڑا ہی آگے، وہ لڑکی سرمد سے کہنے لگی، لیکن اس بار اس کی آواز کافی عجیب اور بھاری تھی۔ اس کی پائل کی چھن چھن بار بار سرمد کی توجہ بھٹکا رہی تھی۔ جیسے ہی سرمد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، سرمد کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ اس لڑکی کے پاؤں بہت ہی بڑے، کسی جانور نما اور الٹے تھے۔ لیکن سرمد نے اپنے اوپر قابو پایا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے لڑکی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا، اور الٹے قدم بھاگنے لگا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد جب سرمد کا خوف اور بڑا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ اسی جگہ پر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ اچانک اس کو کہکوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مردانہ کہکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سرمد کا مذاق بنا رہا ہو اور اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، مجھے میری غلطی بتا دو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ کافی زیادہ بھاگنے کے بعد سرمد کا گلا سوکھ چکا تھا، پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک وہ بدرو اس کے سامنے حاضر ہو گئی، تو اس کو تو سرمد لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص مر چکا ہے، اس کی ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ چکی ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا برا انجام بن کر آیا ہے۔ ارسلان! سرمد کے منہ سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ ارسلان کا آدھا منہ کھایا ہوا تھا، جس کا گوشت غائب تھا، بس چہرے کی ہڈیاں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھ کی جگہ پر گہرا کھڈا تھا، جبکہ پورے جسم پر انہی کے دیے ہوئے زخم تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا؟
मुझे नाहक मार कर तुम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। अचानक सरमद का सर चकराने लगा और वो खौफ के मारे बेहोश होकर नीचे गिरा था। कुछ वक्त वो बेसुध पड़े रहने के बाद गर्मी की शिद्दत महसूस करता हुआ होश में आने लगा, लेकिन आंख खुलने पर वो एक कमरे में मौजूद था जहां पर शदीद गर्मी थी। सरमद को लग रहा था जैसे वो पिघल जाएगा। प्यास से उसका गला सूख चुका था। अचानक उसे कमरे के कोने में पानी का घड़ा नजर आया। सरमद फौरन उस घड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ही था। सरमद चिल्लाने लगा, चीखने लगा, खुदा के लिए मुझे पानी का एक घूंट पिला दो। अचानक उसकी नजर दूसरे पानी के एक घड़े पर पड़ी। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। उसके अंदर पानी देखकर जैसे ही उसने पीना शुरू किया, उसे यूं लगा कि उसके अंदर कोई गर्म और कड़वा मादा जा रहा हो। वो पानी नहीं बल्कि ताजा खून था जिसने सरमद की प्यास मजीद बढ़ा दी थी। अरसलान की रूह उसे यूं ही तड़पा रही थी और उसकी बेबसी पर कह के लगाती रही। सरमद की आंखें अरसलान का भयानक चेहरा देखकर फट पड़ी थी। यूं सरमद की मौत प्यास की शिद्दत से तड़पते तड़पते हो गई थी। सरमद की जवान मौत एक बहुत बड़ा हादसा थी। कई रोज तक हर किसी की जबान पर उसी का जिक्र था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल की तरफ आने लग गए थे कि एक रोज गांव के कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, जब अचानक उन्हें एक शोर की आवाज सुनाई दी। एक फकीर रोता हुआ और चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। कोई भी इस कुएं के पास ना जाए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है जो सारे गांव वालों को निगल लेगी। जो भी इस कुएं के पास जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। मेरी बात लिख लो। लोग उसकी बात सुनकर एक बार फिर दहशत में मुब्तला होने लगे। तो किसी ने बात को बदलते हुए कहा, यार इसकी बातों पर क्यों यकीन करें, ये तो है ही पागल। उनमें से एक आदमी बोला, क्या पता ये पागल सच ही बोल रहा हो। जबकि बाकी सारे उस पर हंसने लगे कि अब तुम भी डर गए। वो फकीर वहां से चला गया और लोग दोबारा बातों में मशगूल हो गए। शाम का वक्त था जब अचानक एक शख्स जंगल की तरफ से भागता हुआ आया। जंगल में से एक आदमी की लाश मिली थी जो आधी खाई हुई थी। यूं लग रहा था कि उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा हो। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैली। पूरे गांव में खौफो हरास फैल गया। कुछ लोग कह रहे थे कि उसे किसी जंगली जानवर ने जख्मी किया होगा, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि किसी ने उसका कत्ल करके फेंका है। हर तरफ से चहमगोइयां होने लगी। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, लेकिन हकीकत कोई भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। छोटा सा गांव था। जल्द ही सारे गांव वालों को इस बात का इल्म हो गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं हुई थी। अगली ही सुबह लोगों को कुएं के पास उस फकीर की भी लाश दिखाई दी जो कल चीखता चिल्लाता हुआ उनके पास आ रहा था। उन लोगों ने गांव के नंबरदार को उस फकीर की बात के बारे में बताया। नंबरदार सोच में पड़ गया, लेकिन वो किसी भी किस्म के जन्नात पर यकीन नहीं रखता था। वो यही समझ रहा था कि किसी इंसान का काम है जो मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। फिक्र तो सबको थी, लेकिन जाने वाले पीछे रहने वालों को गहरा दुख और खौफ देकर चले गए। बात यहां तक आकर भी खत्म ना हुई और मौत का खेल चलता रहा। मगरिब का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। आज वो 3 साल बाद दुबई से वापस आया था। उसने अपने घर वालों को अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। गांव की पुरसुकून जिंदगी फिर से जीने के ख्वाब आंखों में लिए वो बस स्टॉप से उतरने के बाद उसे पैदल ही आगे जाना था। पहले उसने यही सोचा कि वो अपने भाई को इत्तला कर दे, वो उसे लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन फिर अगर वो अपने भाई को बताता तो इसका मतलब था कि सब घर वालों को पता चल जाता। उसने काफी भारी सामान उठा रखा था जिसमें उसके घर वालों के लिए तोहफे तहाइफ थे। थोड़ा ही चलने के बाद उसकी सांसें फूल गईं और उसे प्यास की शिद्दत का एहसास होने लगा। करीब ही कुआं था। उसने शुक्र अदा किया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुएं में से पानी निकालता। करीब ही घड़ा पड़ा हुआ था। उसने उस शख्स को दुआ दी जिसने यहां पर घड़ा रखा था। पानी पीने के बाद फौरन ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो परेशान हो गया कि इस वक्त यहां पर कौन है। थोड़ी ही दूर एक बच्चा रोता हुआ नजर आया। उसने अपने पांव को पकड़ रखा था। अली उसे देखकर परेशान हो गया और फौरन उस बच्चे के पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो। बच्चे ने अपने पांव की तरफ इशारा किया और कहने लगा, मेरे पांव में मोच आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा, जबकि वक्त काफी ज्यादा हो गया है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگا۔ علی کو اس بچے پر ترس آ گیا۔ تو مجھے بتاؤ تم کہاں پر رہتے ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن میں چل نہیں پا رہا۔ اس بچے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ بچہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت رات کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ یہ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت ہی تھی جس نے علی کو اس کی مدد کرنے پر مجبور کیا۔ علی ایک نیک کام کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیک کام اسے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس نے جو سامان اٹھایا تھا وہ وہیں کنویں کے ساتھ ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا دیا کہ وہ واپس آ کر یہاں سے لے جائے گا۔ جب اس نے بچے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، بچہ کہنے لگا کہ اس جنگل میں میرا گھر ہے۔ علی حیران ہوا اور کہنے لگا، کیا جنگلی جانور تم لوگوں کو پریشان نہیں کرتے؟ جنگل میں بھی کوئی ایسا جانور موجود نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بچے نے کہا۔ اس بار اس کی آواز بہت پر اسرار تھی۔ علی پھر اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ جنگل کے بیچ میں پہنچا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ بچے کا وزن کافی زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ جب اس نے چلنا شروع کیا تھا تب اس کا وزن کم تھا۔ پھر ایک وقت میں اس بچے کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اچانک وہ بچہ اس کے بازوؤں سے زمین پر گرا، لیکن وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ جنگل کے درمیان میں کھڑا تھا۔ اسے اونچے لمبے درخت، اونچے قد کے دیو معلوم ہو رہے تھے۔ اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ بچہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھا۔ علی وہاں سے بھاگنے کے پر تولنے لگا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا اس کے قدم زمین پر جم گئے ہوں۔ کوشش کے باوجود وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اسے بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ ایک آخری بار وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا اور انہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ علی اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ تمہاری موت ہوں اور تمہاری زندگی چاہتا ہوں۔ ایک پر اسرار سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز علی لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ خوف سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اچانک ارسلان کی روح علی کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اسے دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی اس سے معافی مانگنے لگا اور اس کے پاؤں پڑنے لگا، لیکن اس کے جواب میں ارسلان صرف کہہ کے لگا رہا تھا، اس وقت میں بھی اتنا بے بس تھا، میں بھی ایسے ہی تم سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یکدم ارسلان کی آنکھیں تیش سے لال ہو گئیں۔ خوف سے علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھا، جبکہ اس کے خاندان والے اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ علی سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچہ، وہ جنگل اور ارسلان کی روح، کیا وہ صرف ایک خواب تھا؟ اپنے گھر والوں کو آواز دی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سن پا رہا ہو۔ اچانک اس کی بہن اندر سے آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے کوئی بھی تاثرات نہ تھے۔ اس کی بہن نے اسے ایک مشروب دیا۔ علی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اس کی بہن نے کوئی جواب نہ دیا اور ویسے ہی کمرے کے اندر چلی گئی جیسے وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ علی نے جیسے ہی وہ مشروب پیا اسے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا۔ وہ مشروب گرم اور کڑوا تھا۔ علی کے منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اسے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی۔ پیاس ناقابل برداشت تھی۔ وہ فوراً اپنی چارپائی سے اٹھا اور پانی ڈھونڈنے لگا، لیکن کہیں بھی اسے پانی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے سب گھر والوں کو آوازیں دے رہا تھا اور ان سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ اسے اپنی ماں روٹی بناتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی ماں نے اپنا چہرہ علی کی طرف گھمایا اور اسے دیکھ کر علی کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ علی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ارسلان کا بنایا ہوا ایک کھیل تھا۔ اچانک اس کے تمام گھر والوں کی شکلیں ارسلان کی شکلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ علی اس سے بھیک مانگ رہا تھا کہ اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن ارسلان اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا اور کہہ کے لگا رہا تھا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ علی گھر سے باہر نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے ایک نہر نظر آئی۔ جیسے ہی وہ نہر کے پاس پہنچا اور پانی پینے لگا، اس نہر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ ماری اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے
علی کی پیاس کو مزید شدت بخشی۔ علی زمین پر تڑپنے لگا جیسے کوئی مچھلی بن آب کے تڑپتی ہے، اور یوں ہی پیاس سے تڑپتے تڑپتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسلان مسکرایا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ علی کے گھر والوں کو اس کے دوست نے بتا دیا تھا کہ علی گھر کے لیے نکل آیا ہے، آج ہی وہ پہنچ جائے گا، جبکہ اس کے گھر والے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے اور اسے گلے لگانے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ علی کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اچانک اس کی ماں کو علی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اسٹیشن سے پتہ کر کے آئے، لیکن جیسے ہی علی کا بھائی کنویں کے پاس پہنچا خوف سے چلانے لگا، کیونکہ اس کے بھائی کا مردہ وجود کنویں کے پاس پڑا تھا۔ پورے گاؤں میں سوگ کا سما تھا۔ علی اتنے عرصے بعد واپس آیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں سے نہیں مل پایا۔ اب وہ کنواں بھی پراسرار مشہور ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس کنویں سے پانی لانا چھوڑ دیا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ فقیر سچ ہی بول کر گیا ہے، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ چوتھی موت تھی جو کنویں کے پاس ہوئی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی جس کو سب بھول جاتے۔ لوگوں نے گاؤں کے نمبردار سے بات کی تو اس نے گاؤں میں پولیس بلا لی تاکہ پتہ لگا سکے کہ یہ کس کا کام ہے۔ پولیس 3 دن وہاں پر پہرا دیتی رہی، لیکن کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا۔ محکمہ جنگلات والوں کو بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے آ کر سارے جنگل میں چھان بین کی، لیکن کوئی بھی بھیڑیا وہاں پر موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا جنگلی جانور موجود تھا جو لوگوں کو قتل کر سکتا۔ لوگوں کا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا کہ یہ ضرور کسی بدرو کا کام ہے۔ اسی گاؤں میں سارا کا ننھیال تھا۔ سارا اپنی ماں سے مسلسل ضد کر رہی تھی کہ میں نے چھٹیاں نانوں کے گھر میں گزارنی ہے، جبکہ اس کی ماں اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی کہ وہ کیسے گاؤں میں رہے گی، لیکن سارا ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جب تک اپنی ضد منوا کر نہ رہتی تب تک سکون سے نہ بیٹھتی، اور اب بھی اس کی ماں نے اس کی ضد مان لی تھی۔ سارا بہت خوش تھی، کل ہی اسے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ دل میں نہ جانے اس نے کیا کیا سوچ لیا تھا کہ گاؤں میں جا کر یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کی کوئی بھی خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی، جس نے اسے ضدی اور نک چڑھا بنا دیا تھا۔ سارا کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے کزن سے طے ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بالکل الٹ تھا۔ سارا چلبلی اور شرارتی تھی، جبکہ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور بہت گہرا انسان تھا، اور بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتا تھا۔ سارا اکثر سوچتی کہ اس انسان کے ساتھ اس کا کیسے گزارا ہوگا، لیکن یہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ تھا جسے اس نے قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں گم رہتا اور بہت زیادہ علم رکھتا تھا، جس کا وہ عامل بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا اکثر کچھ پڑھتا رہتا، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے بہت کم ملتا تھا، اور اسی لیے سارا کو وہ عجیب لگتا تھا۔ سارا کے ابو نے اسے گاؤں کے اسٹیشن تک چھوڑنے جانا تھا۔ اس کے آگے سارا کا کزن لینے کے لیے آتا۔ سارا بہت پرجوش تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنی ماں کی دعاؤں میں گھر سے نکلی۔ جیسے ہی وہ بس اسٹیشن سے اتری، اس کا کزن پہلے ہی آگے کھڑا تھا۔ اپنے کزن کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس سے ملنے اور بات چیت کرنے کے بعد وہ دونوں چلنے لگے۔ سارا کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی پانی کی بوتل نکالی، اسے شدید مایوسی ہوئی کیونکہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ سارا نے اپنے کزن کو بولا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ سارا کے کزن نے اسے بتایا، فکر مت کرو، قریب ہی ایک کنواں ہے، ہم وہاں سے پانی پی لیں گے۔ سارا کا کزن بھی 1 سال بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اسے گاؤں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں علم نہیں تھا، نہ ہی اسے اس کنویں کے بارے میں پتا تھا کہ وہ پر اسرار ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے بالکل انجان تھا۔ جیسے ہی وہ اس کنویں کے پاس پہنچے، اس کے کزن کی پہلی نظر قریب رکھے ایک گھڑے پر پڑی۔ اس میں پانی ضرور ٹھنڈا ہوگا، ہم یہاں سے پانی پی لیتے ہیں۔ جبکہ سارا دیکھ رہی تھی کہ وہ گھڑا کافی گندا ہے، اور اس کے قریب رکھا گلاس بھی گندا تھا۔ سارا کے کزن نے جیسے ہی پانی بھر کر سارا کے حوالے کیا، سارا نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ میں اس گندے گلاس میں پانی نہیں پیوں گی، میں کنویں سے پانی بھر لیتی ہوں، تم وہ پانی پی لو۔ اس کے کزن نے گھڑے سے پانی پی لیا۔ جیسے وہ پانی پی کر فارغ ہوا، اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے آس پاس دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ احساس ابھی تک برقرار تھا۔ اس کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سارا اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ سارا نے دوبارہ اس سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے؟ لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔
इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मुंह से बोलकर सारा को बता सके। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर गया। शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया था। कोई भी नहीं जानता था कि अचानक उसे क्या हुआ है। उन्होंने सारा से पूछा, लेकिन सारा ने भी लाइल्मी का इजहार किया। सारा कुएं वाली बात को भुला चुकी थी। वो अपने कजन के लिए फिक्रमंद थी। न जाने उसे अचानक क्या हो गया था, जबकि उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। यूं लग रहा था जैसे कोई उसका खून चूस रहा हो। थोड़ी ही देर में वो काफी कमजोर हो चुका था। रात को सब सोने के लिए लेट गए, लेकिन हम्माद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बोलने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन यूं लग रहा था कि किसी ने उसकी जबान बंद कर दी हो। उसे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। प्यास से उसका बुरा हाल था। शाम से वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं बता पा रहा था कि उसे प्यास लगी है। ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उठकर पानी पी सके। आखिर ये कैसी बेबसी थी, उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपनी कजन सारा की आवाज सुनाई दी। वो उसे पानी का पूछ रही थी। हमाद का जिस्म एक झटके से आजाद हुआ। उसने फौरन पानी के लिए हाँ कह दी, लेकिन सारा ने उसके पास पानी लाने के बजाय उसके सामने जमीन पर गिरा दिया। हमाद को महसूस हुआ जैसे वो इस घर में अकेला है। जैसे ही उसने आसपास देखा, उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पूरा सहन खाली था। थोड़ी देर पहले ही सहन में उसके घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। जब उसने सामने देखा, सारा का चेहरा अचानक बदलने लगा और उसकी जगह एक खौफनाक चेहरे ने ले ली। उस इंसान का चेहरा आधा खाया हुआ था, जबकि उसके पूरे जिस्म पर ताज़ा जख्मों के निशान थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से मारा हो। खौफ से हम्माद कांपने लगा और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम भी इसी गांव का हिस्सा हो जिन्होंने मुझे पनाह नहीं दी, और मरने से पहले मुझे पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं हुआ। अब तुम भी वैसी ही मौत मरोगे, तड़प तड़प कर। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो काफी अरसे से यहाँ आया ही नहीं हूँ। हम्माद चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वो शख्स गायब हो गया। अचानक हम्माद की नजर एक बर्तन पर पड़ी जहां पे पानी रखा हुआ था। हम्माद फौरन से उस पानी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो कोई और ही मशरूब था जिसने हम्माद की प्यास में इजाफा कर दिया। हम्माद तड़पने लगा और यूं प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। सारा की आवाज भी एक शोर पर खुली। ये अजीबो गरीब शोर था। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें रो रही हों। सारा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सारा ने जब बाहर जाकर देखा, सहन में एक चारपाई रखी थी जहां पर कोई बेजान वजूद पड़ा था। अचानक सारा को अनहोनी होने का एहसास हुआ। वो फौरन भागती हुई बाहर गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस वजूद पर पड़ी, सारा को लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। वो उसका कजन था, लेकिन उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। कल ही की तो बात थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसे कोई भी मसला नहीं था। फिर अचानक उसकी मौत कैसे वाक़या हो गई? अचानक उनमें से एक औरत बोली, जरूर इसने उस कुएं का पानी पिया है, क्योंकि पहले जो अमवात हो चुकी हैं उनका वैसा ही हाल हुआ था जैसा तुम्हारे बेटे का हुआ है। अचानक सारा के दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि कहीं ये उसी कुएं की बात तो नहीं कर रही जहां से सारा और हमाद ने पानी पिया था। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो सारा की भी मौत वाक़या होती, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी। उस वक्त सारा ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। जब उसके कजन की मौत को चंद दिन गुजर गए, उसने एक दिन अपनी नानी से बात की कि नानी, वो औरत किस कुएं के बारे में बात कर रही थी। तब उसकी नानी ने उसे बताया कि गांव के शुरू में एक कुआं आता है। सुना है कि जो भी उस कुएं से पानी पीता है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो मैंने भी उस कुएं का पानी पिया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने हूं, सारा ने अपनी नानी से कहा। उसकी नानी बोली, मुझे इन अफवाहों पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई और ही चक्कर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका पता कैसे लगाया जाए और इसे कैसे रोका जाए। पुलिस भी अपना काम करके जा चुकी है। महकमा जंगलात वालों को भी हम यहाँ पर बुला चुके हैं, लेकिन ये मसला किसी भी सूरत हल नहीं हो रहा। अब ये मसला मैं हल करूंगी। सारा ने दिल ही दिल में सोचा। उसे शुरू से ही एडवेंचर करने का बहुत शौक था। उसे यहाँ पर आए काफी दिन गुजर चुके थे। उस दौरान उसकी एक लड़की से दोस्ती हो चुकी थी। उसका घर उसकी नानी के घर से थोड़े ही करीब था। उसने अपनी दोस्त से बात करने का फैसला किया कि हम दोनों पता लगाएंगे आखिर चक्कर क्या है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसकी बात सुनकर रानो बौखला गई, क्योंकि वो बहुत डरपोक थी
और इन अफवाहों से वो मजीद खौफजदा हो गई थी। उसने सारा का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन सारा ने उसे जज्बाती किया और अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब सारा को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपनी नानी के घर से निकले, क्योंकि जब भी वो अपनी दोस्त के घर जाती थी उसके साथ उसका एक कज़न जाता था। नानी ने उसे ज़्यादा दूर जाने से मना किया हुआ था। उसने अपनी नानी से बहाना किया कि रानो का एक बाग है, आप थोड़ी देर के लिए हमें वहां जाने की इजाज़त दे दें, हम जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन नानी ने इनकार कर दिया। फिर एक सूरत उसे जाने की इजाज़त मिली। उसे अपने एक कज़न को साथ ले जाना था। सारा ने उस कज़न को थोड़े पैसे दिए और नानो को बताने से इनकार कर दिया और अकेली ही रानो के साथ वहां चली गई। रानो बहुत खौफजदा थी, उसकी टांगें कांप रही थी। वो बार बार सारा को कह रही थी कि अभी भी वक्त है, हम वापस चले जाते हैं, कहीं कुएं की बदबू हमें भी जान से न मार दे। जबकि सारा उसकी बातों को मजाक में उड़ा रही थी। वो कुएं से थोड़े ही दूर थी कि रानो रुक गई और कहने लगी कि मैं आगे नहीं जाऊंगी। सारा उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गई और रानो से कहने लगी कि हम थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजारेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। जबकि रानो की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, लेकिन सारा की वजह से वो मजबूर थी। उन्होंने काफी देर वहां पर गुजारी। उस दौरान सारा आसपास देखती रही और सुराग ढूंढने की कोशिश करती रही कि आखिर ये काम कौन कर रहा है, लेकिन वो नाकाम हुई। थोड़ी देर बाद वो अपने घर वापस आ गई। अगले दिन वो रानो से मिलने के लिए गई और रानो को बताया, देखो अगर ऐसा कोई मामला होता तो हम भी मारे जाते। कल हमने कितना वक्त कुएं के पास गुजारा है, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। इसका मतलब यह है कि कुएं का मसला नहीं है, बल्कि मसला कोई और है जिससे हम सब अनजान हैं। उसकी बात पर रानो भी मुत्तफिक हो गई। उसका खौफ किसी हद तक कम हो चुका था। जबकि अगले ही दिन एक और खबर मिली कि एक लाश कुएं के करीब से मिली है। गांव वालों के लिए अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। हर रोज वो अपने एक प्यारे को खोते जा रहे थे। जो भी उनसे मिलने आता वो उस कुएं के जुल्म का शिकार हो जाता। अब मजीद जुल्म और सितम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक आलिम को बुलाने का फैसला किया था कि पता चलाया जा सके आखिर मसला क्या है। वो बहुत बड़ा और मशहूर आलिम था। उसने कहा कि मैं आज रात यहीं पर बैठकर अमल करूंगा और बहुत जल्द तुम लोगों की इस मुसीबत से जान छुड़वा दूंगा। रात 11 बजे का वक्त था। वो आमिल उस जगह पर आ गया। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। खौफ से आमिल का दिल धड़कने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था। आमिल अपनी कैफियत को समझ ही नहीं पा रहा था। या तो वो वाकई डर रहा था या उसका हरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब आमिल एक ऐसा अमल करने जा रहा था जिससे उसने न जाने कितनी बदरूहों को काबू किया था। इससे पहले उसने अपनी हिफाजत के लिए अपने गले में अपने उस्ताद का दिया एक तावीज डाल दिया था ताकि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा पाए। अभी आमिल ने अमल शुरू ही किया था कि अचानक कुएं में शोर मच गया। उसका पानी जोर जोर से उबलकर बाहर निकलने लगा। अचानक बहुत सारी बदरूहें आमिल के आसपास घूमने लगी और ऊंची ऊंची आवाजों में रोने लगी। आमिल जानता था कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। उसने उन बदरूहों को मिटाने के लिए अमल किया, लेकिन उसका कोई भी अमल काम नहीं कर रहा था। अचानक बहुत सारा पानी आमिल के ऊपर आकर गिरा, लेकिन आमिल ने महसूस किया कि वो पानी नहीं बल्कि गाढ़ा मादा था। अचानक एक अनजानी रोशनी आमिल के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि वो पूरा का पूरा खून में नहाया हुआ था, जबकि खून में उसके जिस्म पर मुख्तलिफ कीड़े चल रहे थे। वो आमिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतना भी ताकतवर आमिल नहीं था जितना वो मशहूर हो गया था। इससे पहले उसने जितनी बदरूहों को काबू में किया था वो मामूली ताकतों की मालिक थी, लेकिन ये बदरू उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर थी। अचानक आमिल खुद ब खुद जमीन से ऊंचा होने लगा। वो हाथ पांव मार रहा था और साथ उस बदरू से मुआफी मांग रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा और ना ही उस तरफ आऊंगा। उसके जवाब में उसे कहकों की आवाज आने लगी। यूं लग रहा था जैसे बहुत सारे मर्द व खातीन मिलकर हंस रहे हों और उसकी बेबसी का मजाक बना रहे हों। वो बदरू उसे काफी देर हवा में घुमाती रही, लेकिन वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसकी वजह यह थी कि आमिल के गले में जो तावीज़ था वो उसे हर मुसीबत से दूर रखने के लिए था। पूरी रात उसके साथ अजीब व गरीब वाक़यात होते रहे। वो आधा पागल हो चुका था। जैसे ही फजर की अजान हुई सब कुछ बंद हो गया। वो आमिल भागता भागता गांव में आया और गांव वालों को बताने लगा, इसी मुसीबत से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम लोग एक बहुत बड़ी लानत का शिकार हो चुके हो। वो अपना इंतकाम लेने के लिए वापस आ चुका है।
अब वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अपना बदला लिए बगैर वो इस गांव से नहीं जाएगा और उसका बदला तुम लोगों की मौत के बगैर पूरा नहीं होगा। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और ना जाने कितनी कुव्वतों का मालिक है। आमिल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आमिल उस गांव से भाग गया। शाम को जब सारा रानो के घर गई, रानो ने उसे उस वाक़े के बारे में बताया। उस बदरू ने उस आमिल को भी भगा दिया। सारा ने इस वाक़े को मजाक में उड़ाया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जरूर वो मजाक कर रहा होगा या वो कातिलों के साथ मिल गया होगा। इस वजह से वो अब सबको डरा रहा है। उसने अभी तक इस बात की रट लगाई हुई थी कि हम दोनों भी तो गईं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी वाकया पेश ना आया। सारा की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, आगे उसके पेपर थे। अचानक सारा को फिक्र होने लगी कि उसने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर इस बार भी उसने कुछ ना पढ़ा तो वो जरूर फेल होगी। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और हमेशा ही पढ़ाई से भागती थी, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के लिए वो तालीम हासिल कर रही थी। उसने एकदम से शोर मचा दिया कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन गांव में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसे घर छोड़कर आता। उसने अपने घर में कॉल की और अपने अब्बू को कहा, लेकिन उसके अब्बू भी शहर से बाहर थे। फिर उसकी माँ ने सारा के मंगेतर को सारा को लेने भेज दिया। पाशा जैसे ही बस स्टेशन से उतरा, उस वक्त से उसे एहसास होने लगा कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि उसके पास भी रूहानी ताकत थी। वो सोम और सलात के साथ कई तरह के अमल का भी पाबंद था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे अनहोनी होने का एहसास होने लगा। उसे यूं लग रहा था कि आसपास कोई है, कोई ऐसी शय जो नुकसानदेह है और हर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन उसे बार बार सारा की तरफ से काले आ रही थी, इसलिए वो वहां से चल दिया। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि इस गांव में एक मुसीबत आ चुकी है, जिसने सब गांव वालों को बेबस और मजबूर कर दिया है। सारा पहले ही अपना सामान तैयार किए बैठी थी। वहां थोड़ी देर बैठने के बाद वो दोनों चल पड़े। पाशा ने सारा की हिफाजत के लिए पहले ही एक तावीज़ बना दिया था, जो सारा के गले में डाल दिया, जबकि सारा उसका मजाक बनाने लगी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम इन बातों पर यकीन रखते हो। पाशा उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता था। वो जानता था कि सारा कम उम्र है और नादान है। पाशा ने उससे पूछा, क्या यहाँ पर कोई गैर मामूली वाकयात हुए हैं या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है? पाशा की बात सुनते ही सारा बोलने लगी, यहाँ पर काफी कत्ल हो चुके हैं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि जो भी कुएं के पास जाता है सिर्फ वही कत्ल होता है, जबकि मैंने और रानो ने यहाँ अकेले आकर भी देखा। ये बात कहकर उसने अपनी जबान दांतों में दबा ली। पाशा उसे घूरने लगा, कभी तुमने कोई काम मशवरे से किया हो? मुझे लगा कि तुम डांटोगे और इजाजत नहीं दोगे। ये कहकर सारा ने नजरें झुका ली। दोनों खामोशी से चलने लगे। पाशा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस कुएं के पास पहुंचते ही सारा को प्यास लग गई और वो जिद करने लगी कि मुझे पानी पीना है। पाशा ने घड़े से पानी पहले खुद पिया और फिर सारा को पानी पीने के लिए दिया, लेकिन सारा नखरे करने लगी कि घड़ा गंदा है, जबकि पाशा ने उसके सामने गिलास धोया और दोबारा उसे पानी दिया, जिसे सारा ने मजबूरन पी लिया। लेकिन पानी पीने के फौरन बाद ही उसे अजीब और गरीब महसूस होने लगा। उसके कंधे भारी होने लगे और उसे यूं महसूस होने लगा कि जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो, कोई उसे घूर रहा हो। वो आसपास देखने लगी। पाशा उसकी बेचैनी को अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने एक दो बार सारा से पूछा कि क्या हुआ है। सारा आखिरकार तंग होकर बोली, मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। पाशा गहरी सोच में डूब गया और कहा, फिक्र मत करो, यह तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर वाकई कोई भी नहीं है। लेकिन घर जाने तक सारा की बेचैनी बढ़ चुकी थी। घर पहुंचने के बाद भी पाशा ने उसे ताकीद की थी कि कुछ भी हो जाए, ये तावीज़ तुमने अपने गले से नहीं निकालना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी, जिसका अजाला मुमकिन नहीं। उसने सारा से उस चीज का वादा भी लिया, क्योंकि सारा से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि पाशा जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि पता लगा सके कि ये सारा क्या मामला है। घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और कमरे की सब लाइट्स ऑफ कर दी। उसके बाद उसने जाए नमाज बिछाई। उसके ऊपर बैठकर वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा, जबकि उसने आसपास मोमबत्तियां रोशन कर रखी थी। थोड़ी देर बाद ही वो मोमबत्तियां बुझने लगी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई तूफान आ गया हो। हर चीज हिल रही थी। अचानक बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर बाद हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। जब पाशा ने आंखें खोली, उसने अपने सामने देखा
सामने ही उसका मौक्कल गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। उसके बाल कांधों से नीचे तक लटके हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढक चुका था। क्या हुक्म है मेरे आका? मौक्कल ने पाशा से पूछा। पाशा की सालों की मेहनत रंग लाई थी। आखिरकार वो मौक्कल बुलाने में कामयाब हुआ था। मुझे उस कुएं के बारे में पता लगा कर दो कि आखिर क्या मामला है। पाशा ने अपने मौक्कल को उस कुएं के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया और उसे 2 दिन का वक्त दिया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर वो सारी बात पाशा को बताए। जबकि अंदर से वो सारा के लिए खौफजदा था और पछता रहा था कि ना जाने क्यों उसने सारा को वहां से पानी पीने की इजाजत दे दी, जबकि उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उसने सारा को दोबारा कॉल की ताकि उसकी खैरियत के बारे में पता लगा सके, लेकिन सारा गहरी नींद सो रही थी। अचानक सारा की आंख खुली। उसने अपने आप को एक अनजानी जगह पर पाया। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ पर कैसे आई। हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सारा ने देखा उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने रात को सोने से पहले पहने थे। सारा को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही सारा ने पीछे पलट कर देखा, वहां पर एक नौजवान लड़का खड़ा था, लेकिन देखते ही देखते उसका चेहरा बिगड़ने लगा और उसकी जगह एक खौफनाक सूरत ने ले ली। यह देखकर सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो उससे खौफजदा होकर भागने लगी। भाग भाग कर वो थक चुकी थी। उसका सांस बुरी तरह से फूल चुका था, लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा वो उसी जगह पर खड़ी थी। प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल था, लेकिन वहां से अब वो आदमी गायब था। सारा पीने के लिए पानी तलाश करने लगी। वो भागी हुई नदी के पास गई, लेकिन देखते ही देखते वो नदी खून में भर गई। अचानक सारा की नजर एक बच्ची पर पड़ी जो घड़े से पानी डाल रही थी। सारा उसके पास गई। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी प्यास बढ़ गई। सारा प्यास से तड़पने लगी थी। इससे पहले कि उसका दम निकलता, अचानक सारा की आंख खुली। प्यास से उसका गला सूखा हुआ था। अभी भी उसकी वैसी ही हालत थी। सारा ने फौरन पानी का जग उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। पानी पी पी कर उसका पेट फटने लगा था, लेकिन उसका गला वैसे का वैसा खुश्क था। उसे प्यास की शिद्दत बहुत तड़पा रही थी। ठंडा पानी पीकर भी वो सैर ना हो पा रही थी। वो पूरी की पूरी पसीने में शराबूर थी और सोच रही थी कि ना जाने ये कैसा ख्वाब था। इतना अजीब व गरीब ख्वाब उसने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। जबकि दूसरी तरफ पाशा अपने मौक्कल की वापसी का इंतजार कर रहा था। रात को वो कुछ जरूरी काम कर रहा था जब उसका मौक्कल उसके सामने हाजिर हुआ और उससे बताने लगा कि मामला कुएं का नहीं है, बल्कि उसके साथ पड़े हुए एक घड़े का है। सिर्फ उस शख्स की मौत वाक़या होती है जो उस घड़े से पानी पीता है। वहां एक जालिम बदरू है जो उन लोगों की जान ले लेती है। इससे ज्यादा मैं पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वो जो कोई भी है बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरी ताकतें उसके सामने कुछ भी नहीं। पाशा का शक सच साबित हुआ था। अब जो करना था पाशा ने खुद ही करना था। पाशा को याद आया कि उसने और सारा ने भी वहां से पानी पिया था, लेकिन गले में पड़े तावीज की वजह से वो दोनों बच गए। उसकी अपनी मंगेतर भी खतरे में थी। उसने दोबारा सारा को कॉल की और उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? सारा ने बताया कि वो ठीक है। फिर उसने अपने अजीबोगरीब ख्वाब के बारे में बताया। पाशा को इस बात का यकीन हो गया था कि वो बदरू सारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो सिर्फ उसे डराने की कोशिश करेगी। उसने सारा को दोबारा हिदायत की कि वो तावीज गले में से नहीं निकालना। दूसरी तरफ पाशा सोच रहा था कब उसे क्या करना है। उसने अपने एक उस्ताद से राब्ता किया और उनसे मदद हासिल की। उसके उस्ताद ने एक अमल बताया और साथ में अपनी हिफाजत के लिए कुछ वज़ाइफ भी। पाशा ने अगले ही रोज वहां पर जाने का फैसला किया। इस बार उसने किसी को भी आगाह नहीं किया था। तकरीबन रात का वक्त था। वो उस कुएं के पास खड़ा था। हर तरफ गहरा सुकून फैला हुआ था। पाशा वहीं पर बैठ गया और अपना अमल करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि यूं महसूस होने लगा पूरी जमीन हिल रही हो। तेज आंधी चलने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, जिसने माहौल को दहशतनाक बना दिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि यह सब उसी थोड़ी सी जगह पर हो रहा था, जबकि बाकी पूरे गांव में सुकूत फैला हुआ था। उस बदरू ने पाशा पर कई बार वार करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वो नाकाम हो जाता। जब पाशा का अमल मुकम्मल हुआ तो अरसलान की रूह पाशा के सामने हाजिर हो गई। तुम क्या चाहते हो और गांव के लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हो? पाशा ने उससे पूछा। उन लोगों ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की जब मुझे उनकी मदद की जरूरत थी। मुझे उन सब के सामने मार दिया गया, लेकिन उनमें से कोई मेरी मदद के लिए नहीं बढ़ा। अरसलान गजबनाक आवाज में बोला। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पाशा ने दोबारा सवाल किया। मेरा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं अकेला रहता था। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गांव के कुछ लोगों से एक जुर्म सरजद हो गया। वो गुनाह करते
जब मैंने उन्हें देख लिया तो उस जुर्म की पादाश में वो मुझे फंसाना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर मुझे पता चला कि वो मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। मैं उसी रात घर से बाहर निकल आया, लेकिन वो लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं वहां से छुपता छुपाता उस कुएं के पास पहुंचा। शिद्दत प्यास से मेरा बुरा हाल था। अभी मैंने पानी का गिलास भरा ही था, मैं उसे लबों से लगाने ही लगा था, जब अचानक पीछे से एक आदमी ने मुझ पर वार किया। उसके बाद वो मुझ पर मुसलसल वार करने लगे। मैंने देखा उनके पीछे पूरा गांव जमा था, जो मुझे मारने पर उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। किसी को भी मुझ पर तरस न आया। मैं बिना माँ बाप के उन गांव वालों को ही अपना सब कुछ समझता था, लेकिन उन्होंने मुझे पानी का एक घूंट तक न पीने दिया और थोड़ी ही देर में मैं दम तोड़ गया। फिर उन्होंने मुझे जंगल में जाकर दफना दिया। पहले 2 आदमी जिनको मैंने कत्ल किया वो भी उन्हीं लोगों में से थे। अब मैं हर उस शख्स को कत्ल करूंगा जिसका ताल्लुक इस गांव से है और जो इस घड़े से पानी पिएगा। ये कहकर उसकी बदरू गायब हो गई। उसे अरसलान की रूह से किसी तरह पीछा छुड़वाना था। दूसरी तरफ सारा के साथ अजीब व गरीब वाकयात हो रहे थे। सारा हर वक्त शदीद प्यास महसूस करने लगी थी। खौफ से उसका बुरा हाल था। उसे लग रहा था जैसे चंद ही दिनों में वो पागल हो जाएगी या उसकी जान प्यास की शिद्दत से निकल जाएगी। उसने उन बातों के बारे में पाशा को बताया। अब पाशा को जल्द से जल्द इस मुसीबत से पीछा छुड़वाना था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसे अगली ही रात वो उस जंगल में चला गया और खुदाई शुरू कर दी और अरसलान की लाश को ढूंढना चाह रहा था। अगर वो उसका जनाजा कर लेता तो उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। उसने गांव के लोगों को मदद के लिए कहा और उन्हें सारी बात बताई। गांव के लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। 3 रातों तक मुसलसल खुदाई करने के बाद अगले रोज उसे एक लाश मिली। उस लाश का बहुत बुरा हाल था। उसकी बदबू हर तरफ फैल गई। जैसे ही उन्होंने लाश बाहर निकाली, न जाने कहां से इतने ज्यादा भेड़िए आकर जमा हो गए। पाशा जानता था कि यह सब एक चाल है। उसने फौरन अपने और उन लोगों के गिर्द हिसार कायम कर लिया। जो भी भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता वो दूर जाकर गिरता। पाशा ने सोचा ये काम उसे दिन में करना चाहिए था। पूरी रात वो बदरू उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन फजर की अजानों के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। उसी वक्त उस लाश को गांव में ले जाया गया और उसका गुस्ल कफन करके उसका जनाजा पढ़ाया गया। पूरा दिन अरसलान की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए गांव वाले कुरान ख्वानी करते रहे। उस दिन के बाद गांव में ऐसा कोई वाकया पेश न आया। सारा भी अब पहले की तरह ठीक हो चुकी थी। पाशा ने सारा को अपनी हकीकत के बारे में अभी तक नहीं बताया था। कुछ ही अरसा में दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।